একটা থেকে একটা বাবা সব বিহি বসাতই খার মা খার নং নিছি কাতে থেকে বা ব্যবস্থা তো মা খাইছে বলে কাইছে ও হাকন বা আগেম ফুরজা হাকন কুমা বেকে মিলা হাকন ফুলমানে সগালে সে বলাই থাকু আদিকে তুমি আলে ও আইন দেরেন তুই নো কিবি লাই থাংবলে দুমবারে যে নো দেরেন ফুরগা মানে আ দেরেন ছাকা তুই নো লাই থাং লাস্ট ইয়ার जो किया था तो आई आ कॉल बागलो से लास्ट ईयर तो जगह सही नहीं क्या हुआ इतनी दूर कर दिया देखा आपने देखा होगा उस साइड में वो जगह के काफी अंदर में क्या हुआ इतनी दूर बहुत दूर गया अभी जो हम ट्रेंच कर रहे थे हमने चकमा घाट में ट्रेंच किया चकमा घाट में हमने पूरा गड्ढा किया 2 किलोमीटर का चकमा घाट में आगे नहीं जा रहा है उस एरिया में नहीं जा रहा है हम बिल्कुल घर के पास से घर से 50 मीटर 40 मीटर 100 मीटर इतनी दूर पे एक गड्ढा करेंगे तभी एलिफेंट रुकेगा वो क्या हो रहा है कि वहां पे सिर्फ एक साइड में कर दिया ट्रेंच वो इधर से भी आगे आ सकता है इधर से भी आगे आ सकता है इधर से भी आगे घुस रहा है ट्रेंच को क्रॉस नहीं कर रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो रेलवे लाइन से ऐसे हो जाते हैं इधर से हो जाता है बीच में से एक ट्रेंच किया वो भी पिछली बार भी ये होता पिछली बार भी लोगों से बात करने की कोशिश की इस बार हमने सोचा कि हम खुद जाएंगे बात करने के लिए इसलिए हमने इसी साहब को भी दिया कि इस बार बिल्कुल ऐसा करें कि आपके घर के अंदर आके नहीं आना चाहिए आप बताओगे हमें कि हमें आपका घर को पूरा ऐसे घेर देना है समझ रहे हो कि आपके पारा नहीं आना चाहिए वो आप डिसाइड करके दोगे हमें कि यहाँ से आप बना दीजिए कहीं पारा नहीं आए अभी यदि आप एक आधा किलोमीटर दूर बता कि वहाँ कर दीजिए तो फिर हाथ रुकेगा नहीं फिर वही रहेगा वो कहीं ना कहीं से घूम के आ जाएगा इनके ताबू सामने बकते बंगा जे नरम जागा खुनु फ्रिजर बियां दिखाइनाय नदि बेलाय गेसाव दिखाइ के माइ महाय नहाय इनि फानो सेपन बखाइ बायनाय ए आको सामने बकते बका आको माने माइ नेचर इनके दम माइ कथालो हमके जों आबो बारे पारा बाय प्राय आधा किलोमीटर से केटा 지 뭐 반지매야 약간 이게 반지매야 뭘 반지는 뭐 그래요 이거 전지는 반지매면 다 먹고는 말 또 아무 꿀 반지는 뭐 많이 봐뭐 반지매야 포커스가 뭐 얘는 그 제시 녹까지는 다 뭐 수바이냐 제품 되는 거 반지매야 니야 가지고 가려는 눈치 그냥 내리 피하게 계속 붙어 침막하는 거야. 이거 무슨 얘기만? 그러니까 그거 사도 뭐 상에 깡 때문에 20일 때는 그리고 그러니까 그렇게 그러니까 đấy chúng mùa có rồi các cái 잡아도 엄마야 nông nghiệp có rồi cái cảm thấy là bộ cái áp rồi những cái nó chúng mà nó một cái cha sắp cái cha cái mức tiền số những cái nó áp này hôm nay ta cái này cũng khá là vậy cái những họ có họ nó năng cái có suy nghĩ của đây ta thế này 선덕인데 그러면 이거를 잡아라. 알아서는 상의 많이 배라 동일이니까 다 동일이니까 nó có họ tàn có cái nó ở tàn nhiều việc cái gì vậy tôi cười họ thấy có nó làm chỉ tao phải tàn từ từ rồi bây giờ mình làm bây giờ rồi nghe tao sang cái không phải cái sao hơi tao phải bớt nắm được phải không nó có họ tàn cái nó cái này tôi cười cả cái sao ông mày hay vùng cái nó tao mà phải đi ra bây giờ cái là hay cứ bây giờ làm bây giờ cái aku tu boleh mana ya, biar apa dah. Gaya aku ni hai umumnya tu, hakka kan ramai orang bisa sumber hakka kan yang umum tu, aku biar tu ni baik jadi. Boleh ada orang sudah mana orang tu, bang kerja lagi terang kan baik jadi semua ni bu. Gaya saya mana ya, mungkin fakta gaya saya mana ya, orang malu buat mana ya. Wah si puru punya jauh, gaya semua orang punya gaya saya, orang ni orang tangan. Đó là qua phòng của phòng trường bộ của một dây khi bao giờ một cái anh cái má đâu có anh hàng đó có đó phải đó có đó cái đó này anh đó sao cái này đó là cái sát đó cà phê cái sát khi bây giờ tao cũng tao nó có hai khi bây giờ anh đó có anh không có sao lấy cái có cái anh cũng cho rằng mang không có nó phải sao ra trang món tao ngủ cái orang kita orang bisa mana saya orang seperti saya coba jangan mai nó cái nó nặng thế này biết là bộ tiki ya aku bộ tiki ya aku bộ tiki ya biết là tiki ya biết là nó ung ya anh nói được ra thì
Así bisa saya kan banyak memang tahu dia tadi soal dia. Hah? 4 अप्रैल को एक इंसिडेंट हो गई थी, मतलब 4 अप्रैल को एक डेथ हो गई थी यहाँ पे। तो उस टाइम पे मतलब मेरे को आए हुए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया जुलाई में आने के बाद में मेरा 24 घंटे मेरा मतलब ये मैं 24 घंटे काम करता हूँ, तो उसमें से 18 घंटे यानी ये समझ सकते हैं कि मेरा 70% एनर्जी एलिफेंट को पूछना हो और एलिफेंट से लोगों को पूछना हो, उस पर जाता है। मैं सबसे ज्यादा काम वही करता हूँ। ये मेरे वॉलंटियर्स जो बैठे हैं, इन वॉलंटियर से लगातार बात करना, ये सब करना, क्योंकि मेरे लिए वही है कि मैं यही चाहता हूँ कि उस दिन जब डेथ हुई तो इतना बुरा, जितनी फैमिली को लगा था उससे कहीं ज्यादा मुझे बुरा लगा। तो हम बस सिर्फ हमारी एक ही प्रायोरिटी है, मेरा मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, हमारी एक ही प्रायोरिटी है किसी भी आदमी को हाथी से पूछना। तो जब अभी जो बात होती है एमडीसी साहब को भी ऑफिस में भी हमने बात की, तो ऑफिस में स्पेशली हमने एसडीएम साहब को बुलाइए, एमडीसी साहब काफी पॉजिटिव थे, आए ऑफिस में, इनको पूरा दिखाया हमने क्या क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम आपको वही बताएंगे कि हम क्या एक्चुअली कर रहे हैं। अभी आपके एरिया की मैं बात करूँगा, जो चकमा घाट एरिया है, पहले आपने कभी सुना होगा कि चकमा घाट में बार-बार हाईवे ब्लॉक हो रहा था, बार-बार लोग जाते थे, हाईवे ब्लॉक कर लेते थे, क्यों कि हाथी आ रहा था, घर तोड़ रहा था। लेकिन अभी 10 महीने से तो मैं यहाँ पे हूँ, 10 महीने में एक बार भी ऐसी कोई शिकायत नहीं हुआ। उसका क्या हुआ वहाँ पे, क्योंकि हमने वो गड्ढा किया, ट्रेंच किया, जिसको एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच बोलते हैं, यानी एलिफेंट उसमें से क्रॉस नहीं कर सकता। जो लोग कह रहे थे कि क्रॉस करता है, वो यदि या तो वो है कि वो एलिफेंट का टूट गया है वो ट्रेंच, मेरे को वो जगह चाहिए कि कहाँ पे करता है। अभी इन्होंने जो बताया क्यों क्रॉस कर रहा है, वो क्या किया कि ट्रेंच ऐसा ट्रेंच बना दिया, इधर से भी एलिफेंट आ सकता है, इधर से भी एलिफेंट आ सकता है, तो फिर तो एलिफेंट तो ऐसे तो जाएगा नहीं, रुकेगा नहीं। हमें क्या करना है, हमें पूरे एरिया को, मतलब हमारा यही टारगेट है कि जो ये मुंगिया काम एरिया है, मुंगिया काम फिर श्रीराम खड़ा, फिर आगे महारानी तक, तो ये जो एरिया पूरा जैसे रोड के साइड में जो घर है, ये पूरा एरिया थोड़ा आइसोलेट हो जाए, ताकि इधर हाथी नहीं जाए। अभी इसमें ये कि 2 जगह जैसे वो हम बता रहे थे कि उसमें क्या है कि हमें खेती बाड़ी बचानी है, आदमी को भी बचाना है, सारी चीजों को बचाना है। तो हमारी प्रायोरिटी डिपार्टमेंट की भी वही है कि सारी चीजें बचनी चाहिए, लेकिन हमें काम जो करना होता है वो काम हम एक एक करके कर सकते हैं। मतलब एक साथ करने जाएंगे कि ये भी करना, तो एक साथ तो सारी चीजें नहीं हो पाएगी। हम वही चाह रहे हैं कि पहले कम से कम ऐसा हो जाए कि घर तक हाथी नहीं पहुंचे। हमारा सबसे पहले क्योंकि उस दिन जो डेथ हुई उसका कारण ये था कि उनके घर पे चला गया हाथी, मतलब घर में जो बाड़ी था वहां चला गया। तो हमें बस वही करना है कि हम वो चाह रहे हैं कि ट्रेंच सबसे पहले काम वो करेंगे। दूसरा एमडीसी साहब बताएंगे, उनको मैंने काफी चीजें बताई कि किस तरह से, यदि आपको लग रहा है कि इनकम का कुछ कि हमारा मतलब जो खेती हाथी के चक्कर में हमारा खेती नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम कोई दूसरा इनकम का सोर्स ढूंढ सकते हैं, वो आप बताएंगे, हम उस पर काम करेंगे। मतलब हम यही चाह रहे हैं कि जो आप कहेंगे, क्योंकि एरिया आपका है, हाथी आपका है, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट का तो ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस काम को देखता है, लेकिन आप इस एरिया में रह रहे हो, हाथी भी इतने दिनों से रह रहे हैं। अभी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है क्योंकि शायद हो सकता है घर इतने ज्यादा आ गए, हाथी को पूरा घूमने का एरिया नहीं मिल पा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम्स है। तो जो प्रॉब्लम्स है वो हमें मिलकर सोल्व करनी है। हम यही कहेंगे कि आप जो लोग जैसा बताएंगे, मैं ट्रेंच का भी मैं बता रहा हूँ, ट्रेंच का ऐसा नहीं कि हम डिसाइड करेंगे, आप बताइए कि हाँ मेरे, लेकिन मेरा यही है, मैं जब ट्रेंच का काम होगा तब भी हम गांव में भी लोगों से बात करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो जितना पास में घर के, जितना पास में, मतलब बोले तो इतना बिल्कुल पास नहीं, लेकिन जितना पास में होगा उससे देख रेख हो सकती है, उसका पता होगा कि अभी चकमा घाट आपको जिन लोगों को है, 4-5 लोगों को उस एरिया में से बादल लेके जाना है, जिस एरिया में अभी हम ईपीटी करेंगे ना, उनको 5-6 लोगों को ले जाके चकमा घाट के उस घर के पास से दिखाना है कि किस तरह से वो वहां पे क्यों नहीं हाथी जा रहा है, इधर हाथी आ रहा है। तो वही हमें करना है। बाकी और चीजें, दूसरा एक इशू जो सबसे बड़ा इशू है आप लोगों का या जिनका भी है, कंपनसेशन के, जब भी जैसे खेती डैमेज हो जाती है तो कंपनसेशन टाइम से नहीं आ पाता, उसके लिए भी हमने मतलब बहुत ज्यादा उसको ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया है, ऐप बना रहे हैं अभी हम, तो उसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम। मेरी यही कोशिश है कि मैं मतलब 6 महीने 8 महीने में इस तरह की करता हूँ कि आपका आज डैमेज हुआ है एलिफेंट का कंपनसेशन, वो आपके 1 महीने के अंदर आपके खाते में आना चाहिए। जो भी प्रोसेस वगैरह जो होना है वो होके, क्योंकि जब आपका पैसा मतलब ये लगेगा, आपका रबर का 20 घास रबर का मेरा तोड़ दिया एलिफेंट में, आपको पैसा मिल गया रबर का, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे भी पता है कि आपको प्रॉब्लम है एलिफेंट से कि हाँ हमें मतलब जो भी एक इनकम का सोर्स है, उस इनकम का सोर्स भी यदि एलिफेंट डैमेज करेगा तो सबको प्रॉब्लम होती है, आपको भी प्रॉब्लम है, मुझे भी पता है। तो जो सॉल्यूशन आप कहेंगे कि इस तरह से सॉल्यूशन करना है, वो हम सॉल्यूशन करेंगे। जो भी आपका कुछ भी इशू रहेगा एमडीसी साहब के थ्रू या जो सोशल वर्कर्स हैं उनके थ्रू आप हमारे तक पहुंचाइए। और जब भी हम गांव में स्टार्ट करेंगे, मेरा बस यही इसीलिए पर्पस यही है कि जो ट्रेंच है उस ट्रेंच को जितना जल्दी करेंगे, क्योंकि एक हम ये नहीं चाह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है शाम को एलिफेंट कहाँ आएगा, तो
तो हम ये चाह रहे हैं जितना जल्दी स्टेप हम लेंगे उतना जल्दी हम सेफ रहेंगे। हम ये चाह रहे हैं आप आराम से, यदि आपने घर एक बार बंद करके सो गए तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए एलिफेंट आ जाएगा, इसीलिए टेंशन। अभी जैसे वो सोलर फेंसिंग में जुलाई का पारा में किया है, मैं भी जानता हूँ, अम्मा को मैं गया भी उनके घर पे, तो जुलाई का पारा में जो सोलर फेंसिंग किया तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि हमने अभी चल रहा था फेंसिंग का काम, शायद अब नहीं आएगा, तो उसमें भी कुछ हद तक आप वॉलंटियर्स को बताना है, हमें भी बताना है कि हमें प्रॉब्लम आया, ठीक है।